بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری نظر اتار لوں، حنین نے کہتے ساتھ ہی بیل کا سر اوپر اٹھایا۔ نہیں رکو، میں لکھتی ہوں، نرمین کہتے ساتھ ہی جلدی سے اندر گئی اور ٹیلی فون سٹینڈ پر پڑی ڈائری اور پین اٹھا لائی۔ چلو تمہارا ٹائم شروع ہوا، حنین نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بارش میں اور تیزی آ گئی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ نرمین نیچے لاؤنج کی سیڑھیوں پر بیٹھی جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے لکھ رہی تھی، جبکہ حنین اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ڈرپوک لڑکی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ بارش۔ چلو ٹائم اوور ہو رہا ہے تمہارا، بتاؤ کتنی دفعہ لکھا ہے؟ حنین نے انگلی کے اشارے سے اسے لکھنے سے روکا۔ نرمین نے بیچارگی سے منہ بنایا۔ حنین نے میں نے بہت کوشش کی ہے، مگر صرف 30 بار لکھا گیا، سوری۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی، سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حنین نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ نرمین نے سکھ کا سانس لیا۔ چلو اب اندر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے چائے اور انڈے بوائل کروائے ہیں، تم بارش میں پوری طرح بھیگ چکے ہو، نرمین نے انتہائی نرمی سے کہا، جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور ہاں اب تم نے یہ کاغذ اپنے کمرے کی کبرڈ پر چسپاں کر دینا ہے اور دن میں 3 بار اس کاغذ کو پڑھنا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ آئندہ سے کبھی بھی حنین ملک کو بلاک کرنے کی ہمت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، نرمین نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں یہ لو، حنین نے پینٹ کی جیب سے کچھ دوائیاں نکال کر نرمین کو دیں۔ دوائیاں اچھی طرح پیک ہونے کی وجہ سے گیلی ہونے سے بچ گئیں۔ یہ کس کی دوائی ہے؟ نرمین نے پوچھا۔ تمہاری۔ ہاں تمہاری ہے، حنین نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر مجھے کیا ہوا ہے؟ نرمین کو حیرت ہوئی۔ ہوا نہیں، مگر ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ اب کی بار حنین کے الفاظ میں شرارت تھی۔ کیا؟ نرمین ابھی بھی نہ سمجھی سے بولی۔ نزلہ، زکام اور بخار، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے احساسات ہو سکتے ہیں۔ مسکرا کر جواب دیتے حنین نے پلٹا اور اس کو دیکھا، اور پھر گیٹ سے جھومتا ہوا باہر نکل گیا۔ سریاب کی گاڑی اسلام آباد ٹول پلازا پر کھڑی تھی جب حنین کی کال آئی۔ ہیلو، سریاب نے کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہیں تو نکمے؟ حنین کی شرارتی آواز آئی۔ اسلام آباد ٹول پلازا، سریاب نے جواب دیا۔ شکر ہے تو آ گیا، تو پھر اجازت دے دی تھی پیرنی نے؟ بد دعاؤں کے ساتھ، حنین مزے لے کر کہہ رہا تھا۔ چل بکواس نہ کر، مطلب کی بات بول۔ سریاب کو ماہ نور کے لیے برا لگا حنین کا اس طرح سے یہ سب کہنا۔ اچھا تو اپارٹمنٹ پہنچ کر میرے لیے چائے بنا، اور اگر ساتھ میں انڈے بھی ابال دے تو ہائے 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 مزہ آ جائے گا، حنین نے کہا۔ خیریت؟ انکل نے گھر سے نکال دیا اس موسم میں؟ کیا کارنامہ اب کی بار سر انجام دیا ہے؟ سریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کارنامہ تو سر انجام دیا ہے۔ حنین کے ذہن میں نرمین کا چہرہ آ گیا۔ مگر آ کر بتاؤں گا، میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں، یہ کہتے ہی حنین نے فون بند کر دیا۔ سریاب نے حیرت سے فون دیکھتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اب کس کی شامت آئی ہے، وہ بھی اس حنین شیطان کے ہاتھوں۔ وہ ٹول پلازا کراس کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گیا۔ اس کو بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ دوپہر کسی کام سے مارکیٹ آیا تھا، پھر کسی سوچ کے تحت خود فون کی تلاش کرنے لگا۔ کافی گھومنے پھرنے کے بعد آخر کار اسے اپنی مطلوبہ چیز یعنی آئی فون 8 پلس مل گیا۔ وہ خوشی اپنی گاڑی میں بیٹھا، سم تبدیل کر کے
फ़ोन के फीचर्स चेक कर रहा था और दिल में रायहा की चॉइस को दाद दे रहा था। फ़ोन महंगा ज़रूर था मगर था ज़बरदस्त। इतने में किसी ने गाड़ी का शीशा बजाया। दोपहर ने सरसरी सी नज़र से शीशे को देखा और फिर मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये क्या, वो झुमका, मुझे अब वो नज़र भी आने लगी है। इसे लगा गाड़ी का शीशा रायहा बुखारी, हाँ वही डॉक्टर रायहा बुखारी बजा रही है। इतने में फिर शीशा बजने की आवाज़ आई। दोपहर ने गाड़ी का डोर खोला ताकि इसकी अपनी भी तस्सीह हो जाए, क्योंकि गाड़ी ऑटो लॉक थी इसलिए बाहर से दरवाज़ा नहीं खोला जा सकता था। मगर दरवाज़ा खुलते ही दोपहर हैरान रह गया। वो वाकई में वही वाली डॉक्टर रायहा बुखारी थी। कैसे हैं? रायहा ने फ्रंट सीट पर बैठते ही बड़े दोस्ताना लहजे में पूछा। दोपहर इसकी अचानक आमद पर हैरान था। ऊपर से उसका ये रवैया, इससे कुछ समझ नहीं आई। जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछा। आप डॉक्टर रायहा बुखारी ही हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, रायहा ने फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। दोपहर ने महसूस किया कि हस्पताल की निस्बत रायहा का रवैया आज काफ़ी दोस्ताना है। वो किसी ख़तरे की घंटी है, लेकिन अब वो पहले से नॉर्मल था। वो ये भूल गया था कि रायहा के साथ नॉर्मल रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आप यहाँ कैसे? दोपहर ने पूछा। जैसे आप, मुस्करा के जवाब दिया। नहीं, मेरा मतलब है मैं तो यहाँ शॉपिंग के लिए आया था। और आप? दोपहर ने बात आगे बढ़ाई। इसे मज़ा आ रहा था बात करने में। मैं भी इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ कोई फ्री मेडिकल कैंप तो लगा नहीं हुआ। मुस्कुराहट हनूस बरकरार थी और जवाब भी काफ़ी दोस्ताना था। दोपहर को हनैन की बात याद आ गई। अगर लड़की बग़ैर किसी वजह के मुस्कुराए तो समझो मामला ज़रूर गड़बड़ है। गाड़ी में अब थोड़ा बातों का वक्फा आया जिसे रायहा ने तोड़ा। हम डॉक्टर्स भी इंसान ही होते हैं, हमारी भी सोशल लाइफ होती है जैसे एक आम इंसान की। दोपहर ने नोट किया कि जब से रायहा गाड़ी में बैठी है वो वक्फा से बैक मिरर में देख रही है। इतने में एक रेड कलर की स्पोर्ट्स कार करीब से गुजरी जिसमें 2 लड़के बैठे थे, जिन्होंने दोपहर को काफ़ी घूर के देखा। अच्छा, तो ये बात थी। दोपहर के चेहरे पर मुस्कुराहट पहली बार आई। अच्छा, आप इन लड़कों से बचने के लिए मेरी गाड़ी में आ बैठी थीं, राइट? दोपहर ने रायहा को देखते हुए कहा। जी बिल्कुल। खिलाफ़े तवक्को सच सवाब सामने आया। उसे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद न थी। दोपहर बोला, आपको मुझसे डर नहीं लगा अगर मैं अब आपको जाने ना दूं तो? अभी दोपहर का जुमला पूरा नहीं हुआ था कि रायहा दोपहर की तरफ बढ़ी और इसके बिल्कुल करीब हो गई। दोपहर रायहा की इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसीलिए एकदम पीछे सीट के साथ लग गया। रायहा ने स्टीयरिंग के नीचे से गाड़ी का डोर अनलॉक किया और जल्दी से नीचे उतर गई। ये सब इतना अचानक था कि दोपहर को संभलने का मौका न मिला। अब रायहा गाड़ी के डोर के साथ लगी सीरियस खड़ी थी। वो अपनी पहली वाली टोन में वापस आ चुकी थी। मुस्कुराहट का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। देखो मिस्टर, पहली बात यह है कि 2 की निस्बत 1 का मुकाबला करना आसान होता है, इसलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगा। दूसरा, तुम अपनी गाड़ी बदल लो, इस पर बहुत से स्क्रैचेस आ चुके हैं। मुझे तो इसका इंजन भी अब ओरिजिनल नहीं लग रहा। अभी बेच दो वरना अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। रायहा ने नाकदराना सी नज़र दोपहर की ब्लैक मर्सिडीज़ पर डाली जो कि इसको बहुत पसंद थी, और ये बात दोपहर को सख्त नागवार गुजरी। इतनी नागवार गुजरी कि वो सर झटक के रह गया। अभी वो कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और रायहा का आखिरी जुमला दोपहर के कानों में गूंजा। आपको नहीं लगता आपको अपना परफ्यूम भी तब्दील करना चाहिए? एक्सक्यूज़ मी?
तबैर ने गाड़ी का शीशा नीचा करते रायहा को रोका। जी। रायहा मुड़ी। मुझे लेटेस्ट परफ्यूम्स के बारे में इतनी मालूमात नहीं, प्लीज़ आप कुछ ब्रांड्स के नाम बता दें ताकि मुझे तब्दील करने में आसानी हो। तबैर ने रायहा को शर्मिंदा करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था एक लड़की को मेन परफ्यूम्स के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होगा। मगर यहाँ तो रायहा थी, डॉक्टर रायहा बुखारी। रायहा के जवाब ने एक दफ़ा फिर तबैर के तोते उड़ा दिए। मैं आपको 5 मशहूर मैन ब्रांड्स बता देती हूँ, आप इनमें से चेक कर लें। कैल्विन क्लेन, YSL, डोल्चे एंड गैबाना, जॉर्जियो अरमानी एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट बर्बरी। अब मैं आपको अपनी फेवरेट का भी बता देती हूँ। वैसे मुझे इन टॉप 5 परफ्यूम्स में तीसरी और 5वीं ब्रांड्स बहुत पसंद हैं, यानी डॉल्चे एंड गैबाना और बर्बरी। आगे आपकी मर्ज़ी, डॉक्टर के अंदाज में मशवरा देती। अब वो जा चुकी थी, लेकिन शायद पीछे अपना साया और अपना बहुत कुछ छोड़ के जा चुकी थी। दोपहर को रायहा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हमेशा हर एक से अपनी तारीफ़ें ही सुनी थीं, उसे अब इसकी आदत थी हर किसी से अपनी तारीफ़ें सुनना, लोगों से और इसकी चीज़ों को सराहते रहना। यही हमेशा उसके साथ रहा, मगर वो हर बार इसे तस्हीक का निशाना बनाती है। सड़कों पर बगैर वजह के गाड़ी घुमाते घुमाते काफ़ी शाम हो गई थी और बारिश भी तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। दोपहर ने एक होटल की पार्किंग में गाड़ी रोकी। पागल, बिल्कुल पागल। दोपहर ने स्टीयरिंग पर मुक्के मारे। इसे समझ नहीं आ रही थी कि अपना गुस्सा कैसे निकाले। वो एक दफ़ा फिर इसकी बेइज्जती कर गई थी। दोपहर ने सरेआब को कॉल की। सरेआब इस वक्त रास्ते में था। दोपहर की कॉल पर चूका। हेलो, काफ़ी मसरूफ़ अंदाज में बोला, जबकि दूसरी तरफ से दोपहर की गुस्सा से भरी आवाज़ गुजरी, ऐसी कि वो बर्दाश्त ही न कर सका। उसे समझ न आया कि दोपहर क्या कह रहा है। पागल है, बिल्कुल पागल है। घर से लड़कर आती है और मुझ पर शुरू हो जाती है। इसे मेरी हर चीज़ में ख़राबी नज़र आती है। दोपहर ने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू किया। सरेआब हक्का पक्का रह गया। सरेआब को कुछ समझ नहीं आया। कौन पागल? सरेआब ने हनूस पूछा। वो सिर्फ इतना ही कह सका, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। आगे से दोपहर ने बिना रुके बोलना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल हनैन है, हनैन। दोपहर फिर बोला, कौन हनैन है? कौन उस जैसा और आ गया? कौन ऐसा नमूना है? अब की बार सरेआब उलझन का शिकार हुआ। इससे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। आज से पहले दोपहर ने कभी इस तरह बात ही नहीं की थी, तो उसको क्या महसूस होता, ये आप सोच सकते हैं। यार वो लड़की पागलों की डॉक्टर है शायद, मगर पता नहीं, वो कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त पागल करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सरेआब मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर अब मुझे वो दोबारा मिली तो। दोपहर को खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहता जा रहा है। इसे शदीद दुख था। कभी किसी सिनफ़े नाजुक ने इसकी इस तरह से तज़लील नहीं की थी, बल्कि उसे तो हमेशा तारीफ़ सुनने की आदत थी। दोपहर रुक, मैं आता हूँ। मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सरेआब अब की बार सचमुच परेशान हो गया था। दोपहर ने अपनी कनपटी सहलाते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। अब की बार इसकी आवाज़ निस्बतन नॉर्मल थी। चल फिर बात करता हूँ। और सरेआब की बात सुने बगैर कॉल काट दी, क्योंकि भड़ास निकल चुकी थी। सरेआब अपार्टमेंट में दाखिल होते सीधा अपने कमरे में गया। ड्रेसिंग टेबल पर घड़ी उतार कर रखी और मोबाइल भी अलमारी से कपड़े निकाले। जूते उतार कर स्लीपर्स पहने और वॉशरूम में फ़्रेश होने चला गया। अभी वो फ्रेश होकर निकला ही था कि इसका मोबाइल फ़ोन ज़ोर ज़ोर से रिंग कर रहा था। लगता है हनैन की कॉल है।
सरेआब ज़ेरे लब बड़बड़ाया और मोबाइल उठाने लगा जिस पर दबीर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी हेलो, सरेआब ने खुशदिली से कहा। कहाँ तक पहुँचा है, या अभी तक तुझे गांव की हवाएं सलाम कह रही हैं? दुबैर पहले की निस्बत अब काफ़ी फ्रेश लग रहा था। नहीं यार, फ्लैट पर हूँ, हनैन की कॉल आई थी, कह रहा था चाय बना और अंडे भी उबाल, मैं आ रहा हूँ थोड़ी सी देर में, बस पहुँचने ही वाला हूँ, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। ज़रियाब फ़ोन पर दोपहर को बताते हुए किचन में पहुँच चुका था। क्यों, खैरियत? इस वक्त? ये कोई वक्त है? इस वक्त तेरे पास क्यों आ रहा है? दोपहर ने कदरे हैरत से पूछा। पता नहीं, आएगा तो कुछ पता चलेगा, सरेआब ने कहा। सरेआब, वो मैंने तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मगर हनैन के सामने नहीं, दोपहर ने रासलाना लहजे में कहा। ठीक है, फिर कल ऑफिस में बात करते हैं, मगर अभी ऐसा कर तू भी आ जा, कितने दिन हुए इकट्ठे चाय नहीं पी, सरेआब ने कहा। अच्छा चलो ठीक है, आता हूँ, बाय, बस अभी पहुँचा। ये कहते ही फ़ोन बंद कर दिया। सरेआब की कुकिंग बहुत अच्छी थी। वो कॉलेज के ज़माने से ही कुकिंग कर रहा था और अपने फ्लैट के सारे काम भी खुद ही करता था। सिर्फ कपड़े लॉन्ड्री वाले को जाते हैं और वहीं से प्रेस होकर आते। सरेआब ने अभी एक चूल्हे पर चाय और दूसरे पर एग्स बॉईल करने के लिए पानी रखा ही था कि किसी ने घंटी पर हाथ रखा और फिर उठाना भूल गया। इस अंदाज से ही सरेआब को अंदाज़ा हो चुका था कि तूफ़ान यानी हनैन आ चुका है। सरेआब ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और फिर साथ ही इसका अपना मुंह खुल गया। तू इतना गीला कैसे हो गया? कहाँ से आ रहा है? पैदल आया है क्या? तेरी गाड़ी किधर है? अंकल ने घर से तो नहीं निकाल दिया? तुझे आग तो नहीं कर दिया? अभी वो कुछ और भी बोलता, मगर हनैन ने इसकी बात काट दी। अरे यार, क्या बीवियों की तरह बहस कर रहा है? साइड पर हो, और ख़ुद सरेआब के कमरे की तरफ बढ़ गया। सरेआब दरवाज़ा बंद करता हनैन की तरफ गया, जो सरेआब की अलमारी से अब कपड़े निकाल रहा था। सरेआब को दरवाजे में खड़ा देखकर बोला, मेरे वॉशरूम से वापस आते हुए तक चाय और अंडे तैयार होने चाहिए, इधर ही ले आओ। अगर मुझे ज़िंदा देखना चाहते हो, सख्त सर्दी लग रही है। ये कहता हुआ वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सरेआब ट्रे में चाय और एग सजाए कमरा में दाखिल हुए, लेकिन सामने का मंजर देखकर मबहूस रह गया। हनैन अभी वॉशरूम से निकला था। काली शलवार कमीज़ और सुर्ख वेलवेट की वेस्ट कोट में वो गज़ब का लग रहा था। माथे पर कुछ गीले बाल चमक रहे थे, जो इसके हुस्न को मज़ीद चार चांद लगा रहे थे। हनैन शलवार कमीज़ बिल्कुल नहीं पहनता था, सिर्फ पैंट शर्ट्स में रहता था। इसीलिए सरेआब को हैरत से झटका लगा कि वो देखता ही रह गया। हनैन ने जब अपनी तरफ सरेआब को यूँ साकित खड़े देखा तो बोल पड़ा, क्या देख रहा है? अरे किस तरह देख रहा है? मैं कोई तेरी बीवी तो नहीं जो शादी के दूसरे दिन नहा कर निकली हूँ और ड्रेसिंग टेबल से ब्रश लेकर बालों में फेरने लगा। हनैन की बात पर सरेआब ने कहका लगाया और ट्रे टेबल पर रख दी। यार सुन ना हनैन, कसम से बहुत प्यारा लग रहा है। तो शलवार कमीज़ पहना कर, इस वक्त तो किसी रियासत का इंतहाई खूबसूरत शहज़ादा, इनफैक्ट शहज़ादा गुलफाम लग रहा है। सरेआब ने खुले दिल से इसे सराहा। इतने में डोर बेल बजी। लगता है दोपहर आ गया, कहते साथ सरेआब बेल डोर की तरफ बढ़ा। तवक्को के ऐन मुताबिक दरवाज़ा खुलते ही दोपहर अंदर दाखिल हुआ। सरेआब से मिला। अब दोनों कमरे में आगे पीछे दाखिल हुए, मगर अब दोपहर की हनैन पर नज़र पड़ते ही वो ही हालत थी जो थोड़ी देर पहले सरेआब की थी। दोपहर को यूँ अपनी तरफ देखते हुए हनैन को गुस्सा आ गया। सुनो, क्या तुम दोनों ने मेरा रेप करना है? कैसी गंदी नज़रों से देख रहे हो? जबकि सरेआब सोफे पर बैठा हंस रहा था। हनैन तो कितना प्यारा लग रहा है, दोपहर ने कहते हुए हनैन से हाथ मिलाया और सरेआब के साथ बैठ गया, जबकि हनैन नीचे कारपेट पर हीटर के सामने बैठने लगा। चल
چائے پکڑ اور انڈے کی پلیٹ بھی دے دے، حنین نے سریاب سے کہا۔ سریاب نے باری باری دونوں کو چائے دی، جبکہ انڈوں پر حنین نے قبضہ کر لیا۔ گاؤں میں سب خیریت تھی؟ زبیر نے سریاب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں یار، شکر ہے اللہ کا۔ اس کے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ لیٹسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اللہ حافظ۔